કેવડિયા ખાતે યોજાયેલી 19મી મેરીટાઈમ સ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલની બેઠકમાં તમામ મુખ્ય બંદરોએ વર્ષ 2047 માટે તેમના પોસ્ટ માસ્ટર્સ પ્લાન તૈયાર સહિતની રૂપરેખા રજૂ કરવામાં આવી હતી। કેવડિયા ખાતે યોજાયેલી 19મી મેરીટાઈમ સ્ટેટ્સ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલની બેઠકમાં કેન્દ્ર સરકારના પોર્ટ્સ અને શિપિંગ અને વોટરવેઝ અને આયુષના મંત્રી શ્રી સર્વાનંદ સોનોવાલે ભારતના દરિયાઈ ક્ષેત્ર માટેના વિઝનનું અનાવરણ કર્યું હતું, જેમાં પરિવર્તનકારી પ્રભાવ માટે કટિબદ્ધ પ્રમુખ પહેલોની રૂપરેખા રજૂ કરવામાં આવી હતી। શ્રી સોનાવાલાએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર ટૂંક સમયમાં જ દેશના તમામ બંદરો પર સુરક્ષા વધારવા બંદર સુરક્ષા બ્યુરોને એક મંચ પર લાવશે। કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના તમામ બંદરો હાઇડ્રોજન કેન્દ્રો ઊભા કરવાની સંભવિતતા ચકાસશે। તેમણે ઉમેર્યું હતું કે દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટીએ આ સાહસ માટે 1.68 લાખ કરોડ રૂપિયાનું MOUનું અંતિમ સ્વરૂપ આપી દીધું છે। બંદરો માટે અમૃતકાલ વિઝન હેઠળ બંદરોની ક્ષમતાને 4 ગણી કરવાની દેશની કટિબદ્ધતા અંગે જાણકારી આપી હતી। તમામ મુખ્ય બંદરોએ વર્ષ 2047 માટે તેમના પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન્સ તૈયાર કરી દીધા છે અને રાજ્યો પણ 2047 માટે તેમના પોર્ટ માસ્ટર પ્લાન્સ તૈયાર કરી દેશની કુલ બંદર ક્ષમતા હાલની આશરે 2600 MTP છે, જે વધીને વર્ષ 2047માં 10,000 MTP થઈ જશે। મુખ્ય અને સૂચિત બંદરો સ્ટેટ મેરીટાઈમ બોર્ડ, રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશો યોગ્ય સંકલનને સુધારવા માટે પોર્ટ, શિપિંગ અને વોટરવેઝ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત ગુજરાતના કેવડિયા ખાતે આયોજિત 2 દિવસીય 19મી મેરીટાઈમ સ્ટેટ ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સિલની બેઠક આજે સંપન્ન થઈ હતી। MSDA એક સર્વોચ્ચ સલાહકાર સંસ્થા છે, જેની રચના મે 1997માં દરેક ક્ષેત્રના વિકાસ માટે કરવામાં આવી હતી। તેનો ઉદ્દેશ્ય મુખ્ય અને અન્ય સૂચિત બંદરોના સંકલિત વિકાસને સુનિશ્ચિત કરવાનો છે। પોર્ટ, શિપિંગ અને વોટરવેઝ મંત્રાલયના રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રી શાંતનુ ઠાકોરે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય દરિયાઈ ક્ષેત્ર આપણા દેશના અર્થતંત્ર, સુરક્ષા અને વ્યૂહાત્મક પ્રગતિના પાયાના પથ્થર તરીકે અપ્રતિમ મહત્વ ધરાવશે। તદુપરાંત આપણા વિશાળ દરિયા કિનારાને કારણે આ ક્ષેત્ર દરિયાકાંઠાના લોકોની આજીવિકાને સહાયરૂપ થાય છે। ગુજરાત સરકારના કૃષિ મંત્રી રાઘવજી પટેલે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાતમાં દરેક ક્ષેત્રમાં સાતત્યપૂર્ણ વિકાસ માટે અમારી પ્રતિબદ્ધતા નવીનતા અને સમૃદ્ધિને વેગ આપશે, જે ભારતમાં દરેક ક્ષેત્ર માટે ગતિશીલ ભવિષ્ય તરફ દોરી જાય છે। आप लोगों को मालूम है 2014 तक कांग्रेस के कार्यकाल में नेशनल वाटरवेज को उन्होंने कुछ भी आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। उनके पास कोई पॉलिसी भी नहीं थी, प्रोग्राम भी नहीं थी, कोई उनका दिशा भी नहीं थी। लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आते ही नेशनल वाटरवेज को बढ़ावा दी और कांग्रेस का कार्यकाल में सिर्फ 3 ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज हुआ करते थे, ओनली 3। मोदी जी ने उनको 1 से 11 तक मान्यता दी और आज 2014 तक सिर्फ 16 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हुआ करते थे। लेकिन आप वहां से लेकर सिर्फ 9 साल के अंदर नेशनल वाटरवेज को मान्यता दी और इंफ्रास्ट्रक्चर बने, जिसके वजह से आज 125 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ चुका है और अगले दिनों में हमारा लक्ष्य होगा इसको 500 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ाने का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये तय की है, अभी जो 50% है उसको हम 85% तक हम ले जाने का रोड मैप हम लोगों ने प्रस्तुत की है। और साथ साथ में हमारी अगले दिनों में ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी ये भी बनेगा और राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार दोनों मिलकर इस विषय को आगे बढ़ाने का काम करेगा। के लिए एक अच्छी खबर भी है, वो खबर है कंडला पोर्ट अभी मेगा पोर्ट बनने जा रहा है। मेगा पोर्ट, क्योंकि मेगा पोर्ट के लिए 300 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी वो साबित करना होता है। तो गुजरात ने भी अब तक तो 285 लाख पार किया है, सिर्फ 15 बाकी है, तो वो भी हासिल करेंगे। तो देश के अंदर पहला मेगा पोर्ट कंडला पोर्ट बनने जा रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशखबर बात। सेंसिटिव पॉइंट को लेके कोई डिस्कशन देखिए, हमारे सागरमाला जो प्रोग्राम है उसमें एक बिंदु है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में हम लोगों ने 7,500 किलोमीटर्स में अलग अलग स्थानों पर हमारे कोस्टल कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए उनके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के सिलसिले में आगे बढ़ाने का काम किया है। और अब तो प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना 20,000 करोड़ से अधिक आज सिर्फ कोस्टल कम्युनिटी डेवलप
डेवलपमेंट के सिलसिले में हमारे परम आदरणीय मंत्री रूपाला जी ने जो कदम उठाया है मोदी जी के निर्देश के मुताबिक, आज इसके वजह से अलग अलग प्रांत में अभी फिशिंग हार्बर बन चुके हैं, कुछ बन रहा है। तो इसलिए हमारा ये भी एक बहुत बड़े बिंदु है सागरमाला में। सागरमाला में 5 बिंदु है। एक बिंदु है पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, दूसरी बिंदु है पोर्ट लेड कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, तीसरी बिंदु है पोर्ट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, चौथा बिंदु है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट, कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो इस सिलसिले में और हम लोगों ने एक बिंदु उसमें शामिल किया है पिछली एपेक्स कमेटी मीटिंग में। 56 हम लोगों ने होलिस्टिक कोस्टल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के सिलसिले में प्रोग्राम हम लोगों ने इंक्लूड किया है। इसका मकसद साफ है, कोस्टल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, हमारे फिशरमैन के डेवलपमेंट के लिए, अलग अलग कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोगों की तरफ से इसमें कदम उठाया जा रहा है और भविष्य में भी और भी मजबूत कदम उठाया जाएगा, यह निश्चित है। हम लोगों का ही उद्देश्य है, आप जो मैंने कुछ देर पहले जो बताया 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल थी, हमने क्यों बनाया है, पोर्ट को मॉडर्नाइज क्यों किया है। मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री का दायित्वभार संभाला तब से पहली बार के लिए सागरमाला प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम उन्होंने जमीन में उतारा। इस प्रोग्राम का मूल लक्ष्य यही है, जब तक हमारा पोर्ट मॉडर्नाइज नहीं होगा तब तक यहाँ शिपिंग इंडस्ट्री, मैरीटाइम ट्रेड को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, देश का एक्सपोर्ट इंपोर्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते और हमारा अर्थव्यवस्था का मजबूत हम नहीं कर सकते। इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, मैकेनाइजेशन, डिजिटाइजेशन, सारे आधुनिकीकरण करने में जो भी मजबूत कदम उठाए, इसके वजह से आज हमारा हर पोर्ट जाग उठा है। और आप लोगों ने देखी है कि वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट जो आई है, इससे हमारा स्थान कितना ऊपर चला गया। जहां 54 में थे अब 38 में आ गया, जहां 44 में थे उस पर 22 में आ गया, क्योंकि हर बिंदु में हमने प्रगति हासिल की है।